हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर enjoying इन योर होम्स। टुडे आज हम फिर से एक नया चैप्टर करेंगे ईवीएस का, और इसका टॉपिक भी है आवर होम। और हम डिस्कस करेंगे आवर होम यानी हमारे घर के बारे में एंड अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस। ओके, सो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी ऑल लिव इन अ हाउस विद अवर फैमिली मेम्बर्स। हम क्या करते हैं बच्चों, हम सभी एक घर में रहते हैं। वी ऑल लिव इन अ हाउस विद आवर फैमिली मेम्बर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ। आवर हाउस इज़ आवर होम, हमारा घर ही हमारे लिए आदर्श शेल्टर होता है, यानी कि रहने का स्थान होता है। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड। आवर हाउस, ये हमारा घर है और ये हमें किस किस चीज़ों से बचाता है। हीट से, जो कहाँ से आती है, सन से। ओके, एंड रेन से, थीव्स से एंड वाइल्ड एनिमल से। ओके, जो हाउस है वो हमें प्रोटेक्शन देता है। ओके, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस, our house, it also protect us from thieves and wild animals. Okay, it also protect us heat, rain and cold. Okay, and ये हमें बचाता है किससे, थीव से भी बचाता है और वाइल्ड एनिमल से भी बचाता है। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। नाउ अब बताइए, आपके हाउस में कितने रूम्स हैं। यस, our house has many rooms and we do different things in different rooms। और हम क्या करते हैं, अलग अलग रूम्स में अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, है ना बच्चों। डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट रूम्स, हम अलग अलग रूम्स में अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। ओके, नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में कितने रूम्स होते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज हैं आवर होम के। ओके, नाउ ये क्या है बच्चों, KITCHEN, KITCHEN, kitchen. What we do in that area? Our mom cooks food in this area. Tasty and delicious food. Okay, and what is in this picture? लिविंग रूम, जिसे हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं। ओके, वी वेलकम आवर गेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड वी रेस्ट इन लिविंग रूम एंड ऑल्सो वॉच टीवी। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ लिविंग रूम। ओके, नाउ आर यू सीइंग दिस पिक्चर? Can you tell me the name of this room? Yes, it is bedroom. Which room? Bedroom. B-E-D, bed. R-O-O-M, room. Bedroom. B-E-D, bed. R-O-O-M, room. Bedroom. Okay, बच्चों. Now, name that area. Yes, here is a bathtub, sink, mirror, towel. It's bathroom. Okay, what we call that particular area? Bathroom. We brush our teeth and have bath here. You all know na? First one is kitchen. Second one is living room. Third one is bedroom and fourth one is bathroom. Okay, a house which has all the facilities is called an ideal house.
एक हाउस जिसमें ये सारी चारों 1 2 3 4 चारों फैसिलिटीज़ होती है, एवरीथिंग सब चीज़ें होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? आइडियल हाउस मीन्स आदर्श घर। ओके बच्चों, नाउ टाइम टू डू। वाओ, नाउ यू will tell me, I will ask you the particular things in particular rooms. Okay, name any three things that you have in your drawing room. Okay, tell me what we have in our drawing rooms, in your drawing room. Can you tell me? Yes, sofa. Second one TV, and third one table. And in kitchen what we have, we can explain it here like gas, mixer, sink, and lot of other things we have in our kitchen. Now what we have in bedroom? बेडरूम में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? बेड, लैम्प, curtains, watch, corner table, and flower pot, and mat. Lot of things we have na. Then we can write here. Okay, that we have lot of things. Okay, now bathroom. What we have in bathroom? हमें यहाँ लिखना है बाथरूम में क्या क्या सामान है या होता है. Okay, like in our bathroom, in this picture there is a tub, sink, mirror, pot, towel. Okay बच्चों, so you will write these things in blank field. Okay, now we will move to the third page. Okay, okay बच्चों, now we will study about types of houses. Now first of all we will read a house can be big or small. There are many types of houses where people usually live. Okay, now first of all we will study about types of houses. Okay, first type of house is hut. A house can be big or small. एक घर कैसा हो सकता है? छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. There are many types of houses. बहुत तरह के घर होते हैं जहाँ people क्या करते हैं? रहते हैं. वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना घर छोटा या बड़ा बना लेते हैं. Okay, now first we will study about a hut. This is hut. Hut is a small house. ये क्या होता है? हट स्मॉल हाउस. इट इज़ मेड ऑफ. ये किस चीज़ से बना होता है? मड से. इट इज़ मेड ऑफ मड एंड हैज़ अ थैच्ड रूफ. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. ओके, ये इस तरह का घर कहाँ देखने को मिलता है? विलेजेस में. ओके बच्चों, नाउ थैच्ड रूफ का क्या मतलब होता है? इसकी जो छत होती है वो गाढ़े मिट्टी की बनी होती है. ओके बेटा, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. जो हमारे विलेजेस होते हैं, गांव्स होते हैं, उनमें ये इस तरह के हाउस आपको देखने को मिलेंगे. एंड सेकेंड टाइप ऑफ हाउस इज फ्लैट्स. वेयर वी सी दिस टाइप ऑफ हाउस? इन सिटीज. और हाउ कैन वी मेड दीज हाउसेस और दीज फ्लैट्स कैसे बनते हैं? किन चीज़ों की हेल्प से बनते हैं? ये बनते हैं फ्लैट्स ब्रिक्स एंड सीमेंट से. ओके बच्चों, दीज आर दी फ्लैट्स. ओके, ये फ्लैट्स हैं. इनमें एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे मकान बने हुए होते हैं, उनको फ्लैट्स कहा जाता है. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स इन सिटी. एक बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं. ठीक है, उसमें उसी को फ्लैट्स कहा जाता है. ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है वो. ठीक है, उनको फ्लैट्स कहा जाता है. नाउ आई विल टेल यू बंगलो.
This is a bungalow. 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 Okay, beta. A bungalow is a big house with many rooms. It has lawn and a garage. Okay, I will tell you what is bungalow. A bungalow is a big house. इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं. ठीक है, इसमें 5-6 रूम्स भी हो सकते हैं, 10 रूम्स भी हो सकते हैं. बंगलों में कई रूम होते हैं, मैनी रूम्स होते हैं. ओके, इट हैज़ लॉन एंड अ गैराज. अब बंगलों में लॉन भी होगा, ठीक है, एक छोटा बागीचा होगा, एंड गैराज भी होगा जिसमें आप कार अपनी खड़ी कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. अब बंगलो हैज़ अ बिग हाउस. बंगलो को क्या कहा जाता है, बिग हाउस. ओके बच्चों. नाउ फोर्थ टाइप ऑफ हाउस we can considered in we cannot consider it in house. It is we can consider in temporary house. Okay, हम इसको permanent house नहीं कह सकते, इसको temporary house बोलेंगे. Okay, ये टेंट होता है. ओके बच्चों, दिस इज टेंट. क्या होता है ये, टेंट होता है. इट इज मेड ऑफ कैनवस. किससे बना होता है ये, कैनवस की शीट से बनाते हैं ट्रैवलर्स जो ट्रैवलिंग करते हैं माउंटेन्स की. ओके, दे मेक दीज काइंड्स ऑफ हाउसेस फॉर टेम्पररी सेटलमेंट 1 or 2 days. वो जब ट्रैवलिंग करते हैं तो इस तरह की चीज़ें अपने साथ कैरी करती हैं और टेंट बना के वहाँ पे रहते हैं. ओके, दिस टेंट इज़ मेड अप ऑफ कैनवस. इट इज़ अ टेम्पररी हाउस और इट इज़ यूज्ड बाय ट्रैवलर्स. जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो इस तरह के चीज़ों को कैरी करती हैं ताकि उनको रास्तों में प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस ना करनी पड़े. ओके बच्चों, नाउ यू अंडरस्टैंड. हमने कितने तरह के हाउस पढ़े, 4 टाइप्स ऑफ हाउसेस. फर्स्ट हट, सेकेंड वन फ्लैट, थर्ड वन बंगलो, एंड फोर्थ इज टेंट. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउस बोट. व्हाट इज हाउस बोट बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी हाउस बोट के बारे में. अ हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस. हाउस बोट क्या होती है, पानी पे फ्लोट करती रहती है. और ये किससे बनी होती है, वुड. WOOD, वुड. वुड किसको कहते हैं, लकड़ी को बच्चों. इट इज़ फाउंड इन लेक्स. जहाँ पे लेक्स होती है जैसे श्रीनगर, वहाँ पे इस तरह के हाउस आपको देखने को मिलेंगे. और इसको क्या कहते हैं, इस तरह के हाउस को कहते हैं हाउस बोट. HOUSE, हाउस, BOAT, बोट. ओके बच्चों, हमने अब कितनी तरह के हाउस पढ़े, वी हैव स्टडीड अबाउट 5 types of houses. First is hut, then flat, then bungalow, then tent and houseboat. Okay बच्चों, now we will take a quick revision. Let's take a quick revision. Now, can you recognize which kind of house this is? Yes बच्चों, this is a hut. It's a small house and it is made up of mud and thatched roof. Mud मतलब MUD, mud. Mud means कीचड़ and thatched means रूफ. thatched means जो फूस होती है, घास फूस, उनसे इनकी रूफ बनाई जाती है. We will find these kinds of houses in villages. Now move to the second type of house, that is flats. We are seeing these types of houses in cities. These are made up of bricks and cement. Yes बच्चों, these are flats.
ओके, ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, ठीक है। इनमें कई फ्लोर्स बने हुए होते हैं, उन फ्लोर्स में फ्लैट्स बने हुए होते हैं। इनमें काफ़ी सारे लोग अपने अपने फ्लैट्स में, अपार्टमेंट में एक साथ रहते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमें बड़े शहरों में देखने को मिलती है। ओके, दीज आर कॉल्ड फ्लैट, FLAT, फ्लैट। नाउ मूव टू दी third type of house, that is bungalow, BUNGALOW. Repeat it again बच्चों. Which kind of house this is? Bungalow, BUNGALOW, bungalow. Okay, and it's a big house and with many rooms. It has a lawn and a garage. Okay बच्चों, now move to the fourth type of house. Fourth type is temporary house. These kind of things carried by the travelers, जो ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो इस तरह के कैनवस को अपने साथ कैरी करते हैं। ओके, सो दैट दे कैन प्लेस देयर टेंट एनीवेयर एंड वो वहाँ पे रह सकें। ओके, टेम्प्ररी सेटलमेंट, ये मतलब टेम्प्ररी होता है 1 और 2 डेज के लिए। ओके बच्चों, दिस इज कॉल्ड टेंट हाउस, TENT, टेंट हाउस। ओके बच्चों, नाउ मूव टू दी फिफ्थ काइंड ऑफ हाउस। दिस इज हाउस बोट। ओके, व्हाट इज दिस? हाउस बोट। ओके बच्चों, और हमें ये कहाँ पे मिलेगी इस तरह के हाउसेस? ये वहाँ मिलेंगे जहाँ पे पानी हो, आई मीन टू से लेक वाले एरिया में। ओके बच्चों, लाइक श्रीनगर में मिलेंगे, कश्मीर में मिलेंगे। ओके बच्चों, श्रीनगर में मैक्सिमम आप इसे देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हाउस बोट। ओके बच्चों, I think you all have understood this chapter and all types of houses. If you have any query, then write your query in the comment box. Okay बच्चों, I hope you have understood all the things. Then bye bye and take care.